Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. you can start. Yes, please. Good morning, one and all present over here. Good morning, one and all present over here. On behalf of Government College of Engineering, I, Komal Gandle, heartily welcome you all on the occasion of Expert Talk arranged by IIC 4.0 Cell of Government College of Engineering, Aurangabad. Today, IIC Cell of GECA has organized Expert Talk on Innovation Prototype Validation Converting Innovation into Startup. I heartily welcome to our beloved principal, Dr. Anjali Bhajendra ma'am, for motivation, and I'm very thankful for giving permission to conduct the expert talk under IIC. Next, I would like to welcome Dr. Ratna Parkhi ma'am, uh, President IIC, for their continuous support and guidance. Today we have with us expert person Mr. Kunal Panchal sir, Associate Principal Engineer at Nagarao. Welcome sir. He has 13 years of extensive technical experience in designing and implementing technical and architectural requirements using varied technologies, including hands-on programming and team leading experience in development of end-to-end solution with strategic thinking, comprehensive analytical skill, creativity in solving complex problems, and the ability to come up with programmatical solutions. He has completed post-graduation diploma in marketing, a bachelor degree in computer engineering, and diploma degree in computer technology. He is having extensive experience in developing applications, SOA based, and business process management with rule engine using web technology. He is having expertise in application development, UI, UX development with agile, iterative waterfall model. He is presenting solution architecture and solution to business, IT, and stakeholders. He translating business requirements into detailed architecture and designs. His technology research and market assessment and technology adaptation leading to capability building. He performs engineering and designing assessment defining best practice, mobile application design and its system integration, team management, nurture talent, and drive a team to achieve breakthrough results with exceptional team leading skills. He is having very good communication skill and self-motivated and organized person. Now, I request to Mr. Kunal Panchal sir to take a charge. Please, sir. Kunal sir, I think you are on mute. Oh, Please, sorry. yes. Can you hear Yes, me go now? ahead. Okay, Yeah, yes, Yes. sir. Yes, great, please great. go ahead. Okay, uh, fine. I think this is for the college in Aurangabad, right? Mm-hmm. Okay. Yes, sir. All right. And I would just like to quickly know the students here available are from which year? Third and final year, Oh, okay, most great. of them. Great. Okay, great. Good to know. Just so that I can then paste my information or paste my presentation according to the uh, experience of the students in here. So I believe they would have been already creating some projects, right? Or they would have been involved in some kind of project activities. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Um, I think all the students can also participate right here. So I would like to keep this a more interactive session rather than giving just a plain lecture. So I believe students can also speak here, right? I guess they can unmute themselves and they can ask Okay. questions or they can have interactions. And sir, let me add that there are few second year electronics students as well. I promoted them to attend the session. So Okay. I Okay. can see some of the secondary students are also present in the session. All right. All right. Good to know. Good to know. Yeah. Okay.
So, okay, let me begin the presentation. Let me share the presentation. Okay, let me know if it's visible. Yes, sir. All right, good. Uh, okay, so today we are here, as ma'am mentioned, regarding the innovation and prototype validation. So that's the main agenda, and into it, converting innovation into a startup. So yeah, as I said, I would like to keep this session more of an interactive way, so that we all learn something out of it. And this is not just kind of an plain lecture where it's just like some information is flowing from my side and there is no input from other side. So I'll not uh, like to make it boring. And also, yeah, I mean, we are starting right now at 11:15. We'll continue till 1.5 hours. So yeah, let's see. We all together can create some good session in here. All right. So the audience know how. So I would, as I asked the question earlier, I wanted to understand the uh, the participants information, so that I'm aware of the areas which I need to cover in terms of explaining certain things in what detail, right? So as I understand, there are students from second year, third year, and fourth year. Okay. So quickly, I would like to hear some inputs from students, like what kind of projects they are working on right now. I mean, the individuals can unmute yourself and speak one by one. Who would like to go first? I believe everyone is not forced to speak here, right? Or just join this compulsory. Okay, no one is creating any project. Is anyone speaking? Sir, Okay, myself Prathamesh Devkar. good. Yeah, So hi. I'm working on a project, and the project is like I'm building a mental health app. So the app is like when we feel low, or when we feel depressed, though the app will help to know our emotions, and will give a way to to overcome the depression and that low feeling. Okay, great. That one line is good enough for me. Anyone else? Thank you, Prathamesh. Yeah, welcome, sir. Next, who would like to go? We'll just do this like for 2 minutes, okay? So please, guys, be quick. I believe then everyone else is not having project, so ma'am can then check with them. Next, who would like to speak? No one. ऐसे तो बोरिंग हो जाएगा. कोई और तो बोलो. आई थिंक कितने 64 पार्टिसिपेंट्स है ओवरऑल, अगर मुझे गिन के भी है. So why everyone else is not speaking? मैम और कोई स्टूडेंट्स कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या फिर मैम बता दीजिए आप. Hello, am I audible? Yes, Sangeeta. Yeah. Yes, students are working on the blockchain management, cloud computing, again Okay. on the image processing projects like medical domain. Hmm. Okay. Okay. Good. Good. Uh, Fine. Okay. Let's move to the
presentation. Second point, self information. So I'll explain few things more in detail about myself and my career journey, and maybe that will help others to know some information about. I mean, it's also related to the startup journey. So I'll begin with my education. It began with like regular schooling, and after 10th, I moved into diploma into the computer technology. And after diploma in computer technology, I did computer engineering. And so for this 6 years, after 10th, I really got into the computers only, and I did all my learning based on that. But during this major course of my education, the one thing which stand out uh, was like my inclination into working onto real life projects. Okay, for example, in diploma, I learned the web technologies there. So since that age, to remember the year exactly, it would be somewhere around 2005 or 2006, where I started creating mini projects into web technology. So at that time, that point in time, web technology was very new. It was very, it was not that advanced like today. Even like, for example, we are doing this video conference call in an browser, so it was not that advanced during that point in time. So we used to have websites, like very basic websites like Google, Yahoo, as a products there. And after that, when I got into engineering, also then I spent a lot of time creating projects based on. So in those times, biometric fingerprint reader was very new technology. Now it's very common that everyone in your mobile has that particular piece of technology. So there we had like separate fingerprint scanners. Then we used to connect with the computer systems, and then create further projects around it there. So considering from that era till now, the technology has advanced leaps and bounds. And when we understand that, so during that point in time, when I created projects, I also created projects which were usable in real world. So very simple example was, let's say, creating a wallpaper website. So during that time period, computer was very new, and wallpaper was a big fascination for everyone. Even nowadays it is there, but at that point in time, it was a very peak, at the very peak level, that someone would be, really enthusiastic about to download a wallpaper, set it the wallpaper like any car or any nature wallpaper would be there. So I created a website that was usable for everyone, and it almost had like kind of 50,000 users per month. So it was that popular. Then after some years, I dropped the website. Then I also started a website for lyrics. Right now, if you guys want to search anything nowadays, you can easily go to Google and search, and then either Google also shows you the lyrics information. You have it right into your mobile app also, or either you go to some other third website to get the information. So even in like around now, it's like 10 years back, I created that website. So why I'm giving this example, so in terms of today's topic is like innovating, then doing prototyping, and then getting into startup mode. Okay, so I gave this pre-context so that you can relate with a person like me who did the education maybe similar to you guys, and was able to create something which was usable in real world. Or after that, uh, I mean, as it grew, so I got more confidence in terms that then later on created my own firm. I ran my own company for around 5 years. uh, then after that, due to my some personal commitments with my family, I had to then do a job. Okay, so even right now, when I'm working into various companies, the attitude or the mindset which is required is the same which is required in the startup. Then only we can perform on a regular basis, innovate something on a regular basis. So for me, the startup is not just a company, but it's a mindset. Okay, and I really applaud here for Prathamesh for being bold. So bold also to speak in here.
I believe everyone of you guys would be creating some of the other projects, as ma'am also later on mentioned that you guys are working on latest technologies like cloud computing or image processing, so all these things, AI especially. So, but then the key part is the human factor. So irrespective of what technology you choose or what technology you work in, but if you don't bring in your human factor, like being bold, being confident, uh, being able to take risk, take risk, even to speak whatever, in whatever way, in this given audience, uh, that requires that boldness, that taking that risk, you know uh, going beyond the extra mile, so that you break your comfort zone, and then you work upon something, or then you coordinate or communicate with someone, right? So that's why I wanted that you guys come out of that comfort zone at least for this next 1 hour, so that everyone can grow s- something out of this session, right? So yeah, thank you, Prathamesh, for being a leader there. Okay, then yeah, we move ahead further. All right. So as the session is about what is startup, so I would like to, you know just give few minutes in here to let's understand the basics of startups. So everyone keeps speaking about startup every day. Even in news we are hearing uh, this new terminology now coming up as unicorns. So, like, this company has become a unicorn. XYZ company from a financial technology domain is becoming a unicorn. So there are various terms out of it. Now, when we are at a college level, all these words or all these jargons is too overwhelming for us to understand and to really connect with these words, and can relate and feel that we can do it or not. You know, so I mean, by definition, if you see here, what Google says is it's just an action or process of setting something in motion. It's as simple as that. So that means if you have some idea, you just have to get it moving. It's as simple as startup. If you break the word start and up, right? And if we relate it with a company, so on the right side it said startup or a startup is a company or a project undertaken by an entrepreneur to seek, develop, and validate a scalable business model, right? So that means if you have an idea which is workable, which is it brings some value to someone in the world, then definitely you can bring that idea into some kind of project or some kind of company. Like, when we speak in terms of the company, definitely there should be some kind of business model available in it, so that the company becomes profitable. Okay, while I speak, there's one good example I remember right now is about I don't know if you guys have seen the Indian Shark Tank. How many haven't seen? If you can just say yes or no, even in chat. If you are shy to speak in mic, just type in the chat yes or no. Have you guys seen Shark Tank? Okay. All right, good. So now I think there are now more people being bold in chat for now. Okay, good. Thanks, Prathamesh, Parag, Samruddhi, Disha. Okay, how do I read? Okay, EDC cell, something like that. Okay, Vilas, Deepika, Ankit. Great. Okay, so at least few people have woken up on Saturday morning, 11:30 now, and being alert and listening. Okay, thank you. At least I feel better now, than earlier. All right. So if you guys have seen Shark Tank, there was one very famous episode in which there was a person from village. I don't exactly remember the village name, but then he was coming from a very
a remote area of Maharashtra. He built a very simple, I would say, prototype product which works for a given egg farming solution. So, like for others who have not seen, let me just reiterate the idea there. So, a farmer usually has to carry the fertilizer tank, which usually weighs like 15 kg, 20 kg, and he has to carry it in the back and then move around in the farmland, like which can be, of the size of like 1 kilometer, 10 kilometer, or maybe something in that range. And farmer has to carry that, walk around the whole day in the farm, in these below the sun. It's a tedious job, it's a manual work. And there he thought that, let me create a vehicle where the tank can be placed. And he innovated it through a cycle. He created into some kind of movable vehicle, and then added some spray elements into it. And that idea was very much appreciated uh, I think by Piyush, right? If I remember the name correctly, the founder of the Lenskart. So he really liked the idea, and then they further worked upon it, and now they are making it a success. So why I'm giving this as an example, it's not necessary that we come out of some big uh, colleges or big college names. Let's say, for example, it's not important that we have some certain degree or certain education, then only we can form a startup, or we can create something which is valuable for someone. So it's not like that. Any one of us can build something which is usable for someone. So this is the baseline. That's why I wanted to emphasize it here, like the basic understanding of startup. It's not something rocket science, it's not something out of the galaxy. It's very simple. Every one of us have done it in a way. It's just that we have not set up a company, or we have not created a business model out of it, so that it's an growing business. It turns out into a growing business. Okay. I hope everyone is comfortable here with the speed. And are you guys able to understand? Please respond in chat so that I can adjust my pace if required. Please respond. Okay, able to understand? Or please give any feedback if required, right? So I can adapt according to you guys. All right, good. It's just funny. I remember right now. So if I would have been in your place like 10 or 12 years back right now, I would not have been able to give this speech in English like this fluently. In my that time period, I was very bad in like speaking fluently in English. My friends used to write me they used to write the whole essay kind of thing for my presentation. Then I would used to mug it up, like ratify it, and then present it to my teachers there. So that's why I'm saying a person like me can do it, then any one of you can also do it, right? So that's why I'm also seeking feedback, just so that everyone is able to connect with me here. Okay, great. So thanks for the feedback. So yeah, now speaking of to the as we understand, like what is startup, and how it works, like and in that, so there are very basic three high level steps, I would say. The first is like, definitely you should have the idea. Okay. And if you have the idea, then you should really test it, rather than directly set up a company, start with the I mean, you invest all your money into it, and then find the failure later on. So that's why there is very important step in here is prototype. Okay. Now let's speak. I mean, everyone is aware of like idea. We will speak further more into it in the next slides. Prototype also, there I have few steps important in there, but just to highlight in here right now, prototype is such an important step, but it is always missed. So even in my professional career, when I am working with some other big companies into some project,
Whenever someone has idea, they really start working on the actual implementation uh, rather than trying that idea in a smaller scale to create a prototype, whether it is usable or not, whether it will work in a real life or not. Most of the companies, or most of the time, the project miss this step. So they directly jump from idea to the business model or to the real implementation, and the prototyping is missed. So hence here, in today's session's agenda is also this prototyping is key element here. That's why I like to, in the later on slides, I would emphasize further on this step. And definitely business model is one thing which is more in terms of the startup perspective. Like if you want to really scale up your idea, your working implementation into a real business where you can earn money for yourself, you can set up a company, you can give further jobs to some other people, other growing individuals like you guys. So that's where the business model comes in, where I'll quickly walk you guys through with the business model structure in there. But will not go much in detail in the business model, because I believe you will also learn that in your curriculum, maybe in this year or next years. Okay, so all right, any questions until now, or anyone, any further feedbacks? If not, then I'll continue. Okay, all right. So next part here. Let me give you guys this link, which I want to give first. Uh, okay, I'm just pasting this link in the chat so that you guys can uh, you guys can vote for it. Okay, I'm just trying to find the right window. Okay, let me reshare my window again. Okay. All right. I hope everyone can open that link. In that link, you will find some view like this. Okay, and then you can enter your answer in here, like which company do you like for innovation. So you can give your first answer, second answer, third answer. I would like, so for example, let me feel it for myself. Okay. Okay, so I think that, okay, some people have started writing, so their names appearing. 3 names added by me, Google, Apple, and 3M. Okay, 2 people have voted. Others, I guys, you guys just have to open this link and then answer the questions. If you want, you can also do it from your mobile. If you have joined in from mobile, just scan this QR code or go to this website and then you can enter this code. Okay, let me show it again. Is anyone facing any difficulty to open this? Please feedback. And we'll wait for here for 1 minute for everyone to answer. Okay, good. More responses are coming in.
ओके 64 पीपल है, मतलब बाकी लोग फोर्सफुली लाए गए या फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर आप लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे? 10 ओके, चलो काफ़ी है। अभी कुछ लोग जागे हैं, शायद और लोग जागे। ओके वेरी गुड। 11 यार, एटलीस्ट मुझे ये काउंट है ना यहाँ पे, देखो नीचे काउंट है 30 तक तो चाहिए। वरना फिर यार मुझे ऐसे बोरिंग लगेगा कि मतलब मैं बोरिंग चीज़ बता रहा हूँ आप सब लोगों को। मॉर्गन स्टैनली, ओके इंटरेस्टिंग नेम। लास्ट वन टूर्बो, ओके। इलॉन मस्क कंपनी है, किसी ने लिखा है इलॉन मस्क, ओके चलो ठीक है, हाँ वो एक बंदा कंपनी के बराबर ही है। ओके, कहीं पे इंडियन नेम्स भी आ रहे हैं, ओके दैट्स गुड। महिंद्रा है, टाटा है, कॉग्निजेंट, ओके। अरे क्वेश्चन को ऐसे मत समझना कि कौन सी कंपनी में आपको जॉब करना है, ये विच कंपनी डू यू लाइक फॉर इनोवेशन? मेटा, ओके फेसबुक का रीनेम मेटा है, ओके गुड। 21, अच्छा चलो और लोग जागे, एटलीस्ट हाफ 50% तो टच करे यार, मतलब 64 लोग हैं कॉल पे, तो एटलीस्ट 60% तो लोग जागे, उनको भी लगेगा यार, बाकी लोगों को भी लगे कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ फोर्सफुली नहीं बिठाया जा रहा है। कितना काउंट हो गया अभी? 23 है, चलो 7 मोर यार, 7 मोर। थोड़ा बोल्डनेस और दिखा दो, थोड़ा जाग जाओ सैटरडे को। आई मीन टीचर्स भी वोट कर सकते हैं, ओके ये नया कंपनी नेम है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। एंड्रेस हॉसर, ओके। विप्रो, ओके। बॉश, गुड। सैमसंग, कैपजेमिनी, ओके। 6 मोर प्लीज। 6 और लोग। ये आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपके एक पेज खुलेगा, ऐसे पेज खुलेगा, एंड उस पेज पे आपको 3 बॉक्सेस है आंसर करने के लिए, एंड वहाँ पे आपको आंसर करना होगा। इतना सिंपल सा काम है। कम ऑन गाइस, और 6। या तो फिर देखो, फिर आपके टीचर्स है ना, आप लोगों को फिर अलग से पूछेंगे, मैं उनको लिस्ट दे दूंगा किन किन ने आंसर दिया था, ऐसा करोगे तो, और बाकी लोगों को फिर पूछा जाएगा अलग से। नहीं, और भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आप बाकी लोग को लग रहा है या सेम है? गुड, चलो और बढ़ रहे हैं। 27 और 3 यार, और 3 आंसर दे दो, फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो बता सकते हैं, ये भी है कि अगर किसी को कोई डिफिकल्टी होती है तो प्लीज़ बताओ, इसमें आंसर देना है या नहीं देना है। और 3 लोग, या फिर डुप्लीकेट पार्टिसिपेंट्स तो नहीं है कॉल पे? क्या हो रहा है यहाँ पे, सब इंडिविजुअल नाम तो है। चलो एक और जाके, एक और कोई कोई 2 लोग और यार मुझे सपोर्ट कर लो यहाँ पे, 30 का फैक्टर कंप्लीट कर देते हैं। कौन बाकी है अभी?
नहीं, आप लोग मुझे 28 पे ही रखोगे? चलो ठीक है, 28 पे। अरे वाह, 29 हो गया, सही है, थैंक यू। ओह चलो यार, थैंक यू थैंक यू, आप लोग ने मेरा दिन बना दिया आज। आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने वोट किया है यहाँ पे एंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रियली थैंक यू। क्योंकि है ना, फिर मुझे भी लगेगा कि एटलीस्ट आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा तो मज़ेदार होगा ये चीज़ आप लोग को समझने के लिए। ओके चलो, अभी ये नेम्स देखते हैं यहाँ पे। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम दिए है एंड कोई 2-3 लोग अगर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके कुछ कंपनीज के बारे में, आई विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। कोई बोलना चाहेगा कि क्यों उन्होंने वो पर्टिकुलर नेम दिया है एंड क्या पसंद है उस कंपनी के इनोवेशन को लेकर? कोई बोलना चाहेगा, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहेगा? कोई भी नहीं बोलना चाहेगा? ओके चलो, मैं यहाँ पे मेरे फेवरेट्स कुछ नाम दिख रहे हैं, मैं अपने व्यूज़ वहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे है, टेस्ला दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओके, अमेज़न कुछ हद तक है करेक्ट, गूगल है, महिंद्रा डेफिनेटली न्यू, ये एक मेरी फेवरेट कंपनी बनी है रिसेंटली, क्योंकि इन लोग अपने कार्स के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं सिंस लास्ट 2-3 years। सॉरी गाइस। देन एक अच्छा इनोवेटिव नाम मुझे दिखा था कहीं और, स्नैपचैट। वो तो एक उनका सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ अच्छा इनोवेशन था जो रेगुलर टेक्नोलॉजी से जैसे कर रहे थे। एनटीपीसी मुझे पता नहीं, अगर कोई मुझे इसके बारे में बता पाएगा तो मैं भी कुछ सीख सकता हूँ आज यहाँ पे। एंट्रेस हाउसर भी मेरे लिए नया नाम है। AWS, या AWS क्लाउड कंप्यूटिंग लिए काफ़ी इनोवेटिव है, करेक्ट। देन व्हाट एल्स वी हैव, कोई यूनिक नाम यहाँ पे दिख रहा है? अडानी, ओह यस, आई थिंक अडानी और टाटा ये दो ऐसे नाम हैं जिनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके खुद के हम इंडियंस होके भी हमें नहीं रियलाइज़ हो पाता है कि ये दो कंपनी कितने सारे इनोवेशंस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, छोटे छोटे अपने लेवल पे, एंड भले वो इतने फेमस या पॉपुलर नहीं है जैसे यहाँ पे 3-4 बड़े नाम है जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, बट स्टिल ओके दे आर क्वाइट फेमस। ओके, all right, good. So thank you for the people who have voted there. Now let's get back to the presentation. Okay, all right. So good. Why I asked this question? So I wanted to understand. मतलब मैं समझना चाहता था कि आप सब लोग एक आइडिया को कैसे समझते हो, एक आइडिया क्या आपके लिए मीन करता है। तो जिस हिसाब से आप सभी ने अपने अपने कंपनीज का नाम दिया है, द वे यू हैव गिवन नेम ऑफ द कंपनीज, इट रियली शोज like how you understand an idea. But I would like to further extend this list of yours to some other levels also. Like an innovation can be as simple as that someone has created a lighter instead of a matchstick. Okay, so imagine like what it is solving. So एक matchstick के लिए कितना ही वो ऊपर जो कार्बन लगा हुआ रहता है जिसको बारूद भी बोलते हैं, एंड नीचे बैम्बू स्टिक्स होते हैं, ओके, एंड किसी ने उसको इनोवेट किया है यार, मतलब कितने बैम्बू या फिर कितना बारूद लगेगा, कितने मैच स्टिक्स लगेंगे जो मतलब एक एफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल बारिश के महीने में वो मैच स्टिक से बहुत इशू होता है, तो किसी ने तो सोचा होगा कि यार इस सोल्यूशन को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देन किसी ने एक बहुत एक यूनिक वे इन्वेंट किया होगा कि उसने लाइटर बनाया, है ना, कि जिससे मतलब वो लाइक अल्टीमेटली तो उसमें से क्या आ रहा है, फ्लेम ही आ रहा है, बट वो ऐसा आ रहा है कि कन्वीनियंस के साथ आ रहा है, ईजीनेस के साथ आ रहा है,
कोई भी एज ग्रुप का इंडिविजुअल उस लाइटर को यूज कर सकता है कोई भी पर्पसेस के लिए, भले वो लाइटर आज इन टुडेज ट्रेंड एक थोड़ा मेंटली वो एक गलत वे में आइडेंटिफाई हो जाता है कि कभी भी हम कभी घर पे कोई बोलता है लाइटर है क्या, तो फर्स्ट इंप्रेशन किसी का भी यही जाएगा कि यार वो सिगरेट स्मोक तो नहीं कर रहा। बट अगर आप एक सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके प्योर यूज के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन है वो। मैं इसका एक और रीजन बताता हूँ क्यों उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इमेजिन इंडिया जैसा एक कंट्री है जहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं। इंडिया में जितने भी मतलब चलो उसको डिवाइड बाय 4 कर दे एज एन एवरेज, तो तकरीबन 25 लाख घर होंगे इंडिया में। ओके, एंड 25 लाख घर में एक लाइटर तो एक महीने में एक मैच स्टिक का बॉक्स जो होता है एक महीने में यूज होता ही होता है, करेक्ट। अभी मान लो ये हर 25 लाख घर में जो बैम्बू स्टिक्स आते हैं ना, जो लाइटर की जो नीचे स्टिक होती है, या फिर फॉर एग्जांपल अगरबत्ती लेते हैं उसके अंदर जो स्टिक होती है वो इंपोर्ट होती है इंडिया में। मतलब एक 2016 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, या फिर उसके पहले एक लॉ था कि हम इंडियन फार्मर्स बैम्बू को कट नहीं कर सकते, बैम्बू का फार्मिंग नहीं कर सकते, बैम्बू को ग्रो कमर्शियल यूजेज के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैम्बू को कैटेगराइज किया था एज अ ग्रास, एंड इंडिया में ग्रास कटिंग बैंड है, मतलब अलाउड नहीं होता। सो उस एक लॉ के वजह से जब गवर्नमेंट ने 2016 के आसपास आई थिंक ये लॉ में चेंज लाया था, जस्ट बिकॉज कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है कि जितना भी 25 लाख घर में रेगुलर बैम्बू यूज होते थे वो सारा इंपोर्ट होता है। तो इंडिया में जितना भी कोई अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैच स्टिक्स हो गया या फिर अगरबत्ती हो गया, तो उनको वो एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। नाउ अभी एक सोल्यूशन है ना, मैं आइडिया की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। एक सोल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर आई थिंक जो भी उसमें पेट्रोल जाता है, कोई केमिकल जाता होगा लाइटर के अंदर, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है अंदर, बट वो मटेरियल आई थिंक लोकली बिल्डअप हो सकता है, एंड वो एक प्लास्टिक का जो आउटर बॉडी है वो बिल्डअप हो सकता है, उसे लाइटर में से फ्लेम आ सकता है। ओके, तो जो एक कंट्री के लिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर 25 लाख घर में वो यूज़ होता है रेगुलर बेसिस पे, उसको एक सब्सिडाइज करे। तो देखो आइडिया कितना छोटा था, प्रॉब्लम कितना छोटा है, बट जब मैंने उसको स्केल में डाल दिया, लाइक एक इंडिया जैसे नेशन में कितने घर होंगे, कितने घर में कितने फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, उससे बिजनेस मॉडल हो गया, करेक्ट। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन में भी जैसे वेरिएंट्स आते हैं, किसी ने तो सोचा उस टाइम पे, जैसे हम सभी जानते हैं एप्पल, जैसे सभी लोग काफ़ी लोगों ने नाम दिया है एप्पल एज ए कंपनी का। स्टीव जॉब्स ने क्या किया था, पुराने टाइम में बटन वाले फ़ोन्स होते थे, उसने सोचा यार ये बटन बाहर क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या हम बटन कितने % ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया 30-40% टाइम ही। तो अगर कोई चीज़ हम 50% से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका हमेशा वहाँ पे होना ज़रूरी है? ओके, तो आंसर वाज नो। देन दे इनोवेटेड टू अ वेरी सिंपल सोल्यूशन, क्या हम ये कीबोर्ड को सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। दैट्स वेयर दे क्रिएटेड द फर्स्ट आईफोन, एंड देन उसके बाद आज मतलब ऑलमोस्ट हम सभी के पास में वैसे फ़ोन्स है जिसमें कीबोर्ड अंदर है, पूरा लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले है ना। एक छोटा सा आइडिया था, क्यों छोटा सा आइडिया क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। सो दैट्स वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया इज, एंड एक आइडिया क्या कर सकता है वो हमें यहाँ से जानने मिलता है। एंड चलो जब हम आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू स्पीक फर्दर मोर ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, बिकॉज देन नाउ अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी नए डिफरेंट सॉल्यूशंस है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, एंड उसमें प्रोटोटाइपिंग कहाँ पे आता है, प्रोटोटाइपिंग का क्या रोल है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद में हम आगे, जैसे नेक्स्ट मैंने बोला था बिजनेस मॉडल होता है, या फिर उसके स्टार्टअप के प्रोसेस में क्या चीज़ होता है, तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्विकली चाहूँगा कि हमें ना ये जो 6 फेजेस है, 6 स्टेप्स है यहाँ पे, उस पे एक बार गो थ्रू करें। ओके, जैसे यहाँ पे है
फर्स्ट फेज में है एम्पथाइज. ओके, एम्पथाइज का मीनिंग क्या होता है? जैसे इंडिया में हम एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में यूज होता है वर्ड ज़्यादातर करके जुगाड़, है ना. कोई भी हम एक ऐसा तरीका यूज करते हैं जिससे किसी का कुछ चीज़ तो सॉल्व हो रहा है, एंड वो किसी का हम इंडिविजुअल खुद के लिए भी हो सकते हैं, हम फ्रेंड के लिए कर रहे होते हैं, या फिर थर्ड पर्सन के लिए कर रहे होते हैं, है ना. तो एक जुगाड़ एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच है जो आपको हेल्प करेगा आपको आइडिया डिफाइन करने के लिए. तो जब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे वी आर एम्फसाइजिंग ऑन टू सम यूजर. दैट यूजर कैन बी हु, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी डॉटर है, शी इज राइट नाउ 5 years old, बट वो आईपैड या फिर मोबाइल एट द एज ऑफ 2.5 years से कर रही है, राइट. मतलब किसी ने तो बैठ के सोचा होगा कि यार, मतलब हम एक यूट्यूब ऐप बना रहे हैं, इट कैन बी फॉर किड्स और इट कैन बी फॉर एडल्ट्स, बट हमें किन के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है. अब वो एक ऐप ऐसा ऐप है जो एक हमारे घर पे कोई दादा नाना नानी आजा आजी जो भी रहेंगे वो यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स उसकी रेंज देखो, किसी ने कितना उसको सोचा है कि 2.5 years का एक इंसान, छोटा सा बच्चा से लेके 80-90 years के एज तक भी कोई लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. तो कितना सिंपल रखा होगा, कितना उसको इजी टू यूज बनाया होगा. बट उसको करने के लिए फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या होगा कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि हमें इस एज ग्रुप से लेके इस एज ग्रुप तक बनाना है. मतलब इस फेज को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग. सो हम डेमोग्राफिक जो होती है हमारे आइडिया को लेकर, उसको हम डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक मेल यूज कर रहा है, फीमेल यूज कर रहा है, या फिर एक हाउसवाइफ यूज कर रहा है, एक मदर यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है ये एक हमारे प्रोडक्ट को. जैसे मैंने लाइटर का भी एग्जांपल दिया था, लाइटर, बट ऑब्वियसली किड्स ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, बट एक सर्टेन एज के बाद 14-15 एज के बाद बड़े या फिर टीन्स एंड एडल्ट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल जैसे मैंने कहा 2 years से लेके 90 years तक यूजेज हो सकती है. ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है. लाइक फॉर एग्जांपल, चलो और एक छोटा सा आइडिया मैं बोलूँ, सेफ्टी पिन फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है. इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट है मोबाइल के अलावा जो उनके पर्स में हमेशा होगा ही होगा, राइट. सो मैं ऐसे छोटे एग्जाम्पल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आइडिया ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होना चाहिए. आइडिया वैसा होना चाहिए जो यूजेबल हो हम इंसानों के लिए, राइट. फिर वो उसके लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, इट इज नॉट रेलेवेंट इन टू दैट. सो दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट फेज ऑफ एम्पथाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक बार हमने एम्पथाइज कर लिया कि हम चलो हमको किसके लिए क्या करना है, या फिर हम किसके लिए जुगाड़ लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई फ्रेंड के लिए कोई चीज़ सोच ली है एंड हम उनको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बेशक से वो जो चीज़ आपने सोची है, जो जुगाड़ सोचा है, वो इंडिया में एटलीस्ट 25%, मिनिमम 25-30% लोगों के लिए अप्लाई ज़रूर होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक आइडिया हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा कि यार घर पे मोबाइल बार बार गिर जाता है, चलो उसके लिए मोबाइल स्टैंड बना लेते हैं. तो किसी ने छोटा सा एक प्लास्टिक का स्टैंड बना दिया. सिंपल प्रोडक्ट है, स्केलेबल है, 25 लाख घर में एक स्टैंड तो यूज़ हो सकता है, 1 साल में एक बार चलेगा, तो हर साल खरीद सकते हैं. वैसे मॉडल बनता है, ठीक है. उस हिसाब से अभी जैसे इसको सेकेंड स्टेज पे आते हैं डिफाइन क्या होता है कि जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की या फिर आइडिया की क्या यूजेज होगी, कहाँ पे उसका बेनिफिट होगा किसको, तो उस वे से हम डिफाइन कर रहे हैं. देन उसका नेक्स्ट स्टेप होगा आइडिएट मतलब फिर हम उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं. जैसे हम पेपर में लिखेंगे, ट्रेडिशनली पेपर पे लिख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में लिख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में, नोटपैड में, कि यार हमारा ये आइडिया है, एम उसका क्या है. जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो वहाँ पे जैसे सिंपल आई थिंक मेथड्स होते थे, एग्जैक्ट मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, बट जैसे एम होता था, प्रोसीजर होता था, एंड उसके बाद रिजल्ट होता था, करेक्ट. सो इन 3 स्टेजेस में हम एक अपने एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर सकते थे. तो आइडिएट भी नथिंग, इट्स सिमिलर टू दैट,
कि हम एक स्कूल का प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आइडिएट एम लिख दिया, प्रोसीजर लिख दिया कि उसमें क्या करना है एंड उसका रिजल्ट क्या है. इट्स अ वेरी हाई लेवल स्टेप. देन उसके बाद हम एक और स्टेप में डिटेल में जाएंगे, दैट इज प्रोटोटाइप. नाउ प्रोटोटाइप क्या होता है, हम एक नेक्स्ट स्टेप्स नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं एंड फिजिकल वर्ल्ड में कैसे कर सकते हैं. बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोटोटाइप एक ऐसा फेज है जो जनरली बहुत ईजिली मिस हो जाता है एंड उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दिखाते हैं हम लोग, काफ़ी सारे लोग, प्रोफेशनल लोग, बट वो बहुत की एलिमेंट है यहाँ पे. एंड इवन एट फॉर अ स्टार्टअप, प्रोटोटाइप इज दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज. क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे होता है कि आप उस प्रोटोटाइप जब आप बना लेते हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, राइट? मतलब टेस्ट करने का इंटेंशन क्या है कि वो चीज़ क्या सही में लोगों के लिए वैल्यूएबल है. कैन, जैसे आपने पहले फर्स्ट स्टेप में सोचा था कि यार मुझे एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए गेम बनानी है, एक टॉय बनाना है. फॉर एग्जांपल आज इंडिया में करंट लास्ट मंथ से इंडिया में टॉय इंडस्ट्री को बहुत पुश दिया जा रहा है. ठीक है, मान लो एक वुडन टॉय बनाने का एक आइडिया है, किसी को छोटा सा गेम बनाने का आइडिया है, तो वो गेम का आइडिया तो सोच लिया आपने, सोचा था कि यार चलो है ना उसको एक 6 ईयर से लेके 12 ईयर्स के एज ग्रुप तक लोग खेल सकते हैं. बट जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा यार वो एज ग्रुप के लोग तो खेल ही नहीं पा रहे. क्यों? हो सकता है कि उनके लिए वो गेम बहुत सिंपल है, या तो ये हो सकता है उनके लिए गेम बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसीलिए टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे जब आप एरो मार्क्स देख रहे हो, सो ये एरो मार्क्स इसलिए है कि आप कोई भी स्टेज पे जब फेल होते हो तो आपको दोबारा एक स्टेप पीछे जाना है. प्रोटोटाइप में एक बड़ा एरो क्यों है? क्योंकि प्रोटोटाइप अगर आपने सही से नहीं बना पा रहे हो तो आपको दोबारा आपको फर्स्ट स्टेप में जाना है कि आप क्यों बना रहे थे. ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप के बाद जैसे मैंने बताया, टेस्ट अगर फेल होता है तो आपको दोबारा रीप्रोटोटाइप करना है. अगर आपको अगेन देन साइकिल रीइटरेट्स. अगर यहाँ टेस्ट के स्टेज तक सब कुछ सही है, देन आपको रियल इम्प्लीमेंटेशन के फेज पे जाना है. अगर आप यहाँ पे देखें नीचे की ब्लॉक्स देखें, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर एंड मटेरियलाइज, ये 6 स्टेजेस को है ना डिफरेंट, ये 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो लास्ट स्टेप इज द अल्टीमेट माइलस्टोन कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट स्टिल वो स्टेज में भी हो सकता है कि कोई फेलियर फेज हो सकता है. देन अगेन डिजाइन थिंकिंग एज अ प्रोसेस में आपको दोबारा ये स्टेज से गुजरना जरूरी है. एंड कोई भी एक स्टार्टअप को या फिर कोई भी एक नए बिजनेस को या फिर कोई भी एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आइडेंटिफाई करना कि क्या आप सही से डिजाइन थिंकिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ या फिर कोई डाउट्स? ओके, समवन सेड नाउ इट्स अलाउड 25 करोड़. ओह अरे हाँ, करेक्ट. आई थिंक मैथ्स मैंने गलत कर दिया. गुड फीडबैक, थैंक यू सुदर्शन. हाँ मतलब सोचो, मतलब स्केल कितना बड़ा हो गया. 20, पहले मैं 25 लाख बोल रहा था, तो अगर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो करेक्ट 24 करोड़ घर है. सोचो, मतलब इंडिया एज एक छोटी सी, मतलब छोटा देश तो नहीं है, एक इतना बड़ा देश है. सिर्फ एक देश को पकड़े तो उसमें इतना वॉल्यूम हो सकता है, मतलब 25 करोड़ घर हो सकता है, राइट? सो आप इमेजिन करिए कि एक छोटी सी चीज. अच्छा चलो सेफ्टी पिन देखते हैं. अगर इंडिया में 1.3 बिलियन लोग हैं, मतलब 130 करोड़ लोग हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, मतलब जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से समझते हैं 50% विमेन है, तो एक सेफ्टी पिन जैसा प्रोडक्ट कितने 75 करोड़ के आसपास लोग यूज करेंगे. या फिर उस, चलो ठीक है मैं मैथ्स में इतना सही नहीं हूँ, बट 60 करोड़ पकड़ लेते हैं या 50 करोड़ पकड़ लेते हैं इजी मैथ्स के लिए, उसमें किड्स भी होंगे. चलो 50 करोड़ लोग के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है. तो उस वे में अगर आप सॉफ्टवेयर में भी कोई चीज सोचते हो, जैसे कोई ऐप सोचते हो, सेफ्टी ऐप सोचते हो, या फिर आप कोई एक गेमिंग ऐप सोच रहे हो, आप फार्मर्स के लिए कोई सर्टेन चीज सोचते हो, सिर्फ इंडिया के लिए अगर आप कोई सोल्यूशन सोच रहे हो तो आप सोचो उसका स्केल कितना बड़ा है. हेंस आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी, जब अभी जैसे हम नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे उसको, आई थिंक चलो उस पर स्विच कर लेते हैं. तो प्रोटोटाइपिंग के वेज क्या है? ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वे होता है सॉफ्टवेयर वे, सेकेंड होता है फिजिकल एक तरीका होता है. अभी रिसेंटली लास्ट 6 इयर्स में 3D प्रिंटिंग एज अ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी ग्रो हुई है,
जिसमें आपको कहीं किसी के पास कहीं पे जाना नहीं पड़ता, कहीं पे क्या बोलते हैं, कोई वेल्डिंग शॉप में नहीं जाना है, कोई पार्ट्स असेंबल नहीं करने हैं, कोई मेटल के पार्ट्स आपको प्रोक्योर नहीं करने हैं। आप विदाउट दैट आप एक सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसकी यूजिबिलिटी क्या है, उसका फील एंड टच क्या है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। मैं उस पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो आप सभी लोग बेशक से जानते ही होंगे। जैसे वायर फ्रेमिंग हो गया, मॉकअप हो गया एंड प्रोटोटाइपिंग हो गया। सो प्रोटोटाइपिंग के पहले ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे उसका कंटेंट हम डिफाइन करते हैं, एंड उसके फिर उसका लुक एंड फील डिफाइन करते हैं, एंड देन फिर फाइनली प्रोटोटाइप में वो कैसे यूज होगा वो डिफाइन करते हैं। एंड इस सॉफ्टवेयर के लिए आई बिलीव आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स जानते होंगे, जैसे स्केच आईओ करके एक प्लेटफॉर्म है, एंड एक आध दो और नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट एडोबे की तरफ से भी काफ़ी ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो आपको इन फेसेस के लिए हेल्प करता है। बट पहले एक सर्टन एज, आई थिंक 10 ईयर्स पहले, हमारे लिए हमेशा लिमिटेशन होता था कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं। सो आज के टाइम में वो एक जनरल इशू नहीं है। आई थिंक मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखे जहाँ पे किसी ने कोई कंट्री में पूरा एक घर 3D प्रिंट कर रहे हैं। मतलब इमेजिन करिए कि एक रिमोट सा एरिया है, एक हिल स्टेशन है जहाँ पे इजीली मशीन्स नहीं जा पाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, छोटे से 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स को एक घर के साइज में असेंबल करते हैं वो जगह पे जाके, एंड वहाँ पे पूरा वो एक इतना बड़ा ह्यूज स्केल का 3D प्रिंटर है जो पूरा घर प्रिंट करता है, एक ऐसे ड्रॉ कर रहा है, दीवार ड्रॉ कर रहा है, एंड वो प्लास्टिक मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल होगा, उससे पूरा एक प्रॉपर घर बन सकता है। ये अभी मैं बड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि मतलब एक सेफ्टी पिन या फिर लाइटर जैसा छोटा नहीं है ना। इस हद तक प्रिंट चीज हो सकती है। सो दैट मीन्स आप कोई भी चीज प्रिंट करके उसका प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, तो ये वहां पे बेनिफिट होता है। ओके, ऑलराइट, अभी तक कोई क्वेश्चंस? आई होप सबको समझ में आ रहा हो सारी चीजें। Yes, no, no questions. Okay, I'm really happy that एक जन तो मुझे बहुत प्रोएक्टिवली सुन रहा है। प्रथमेश, थैंक यू। ऑल राइट, आई एक्सपेक्ट देन बाकी लोग अगर नहीं लिख रहे तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, एंड अभी तक कोई डाउट्स नहीं है। ऑल राइट, that's गुड। ओके, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस मॉडल की तरफ पे। आई फील, आई गेस अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे अपना सेशन थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैंने उसके लिए ज़्यादा टाइम रखा था ताकि हम इंटरेक्ट करें, तो उसमें और थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझे। ओके, सो अब हम आएंगे हमारे लास्ट एक स्टेज पे, जहाँ पे हमने आइडिया के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने प्रोटोटाइपिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रोटोटाइपिंग कैसे करता है वो एक हाई लेवल पे समझ लिया। अब वहाँ पे हमारे पास आ गया कि यार चलो अब हम स्टार्टअप के डायरेक्शन में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वहाँ पे कोई भी एक बिजनेस मॉडल प्लान जब बनाते हैं तो ये एक उसका काइंड ऑफ एन टेम्पलेट है, या एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं कि इस टेम्पलेट में आपको सर्टेन ब्लॉक्स दिए गए हुए हैं, एंड उस ब्लॉक्स के हिसाब से आपको आपका बिजनेस मॉडल जो है वो डिफाइन करना होता है। उसके लिए एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो है, इंडियन एक आई थिंक इंडियन के कोई MBA इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया हुआ है ये वीडियो, जो बहुत हेल्पफुल था। पर्सनली आज भी जब मैं मॉर्निंग में देख रहा था, मेरे लिए भी लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नए आई मीन ग्राफिकल वे से उन्होंने समझाने की कोशिश की है डिफरेंट कंसेप्ट, सो इट्स क्वाइट गुड। आई विल शेयर द लिंक लेटर ऑन। बट हाँ, जैसे इस फ्रेमवर्क या फिर इस टेम्पलेट में हम समझते तो क्या है कि आपका आइडिया हो गया, आपने प्रोटोटाइप बना लिया, देन फिर आप एज ए स्टार्टअप के लिए या फिर एक बिजनेस कमर्शियल बिजनेस मॉडल के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स है जो आपको सोचने पड़ते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप जो बना रहे हो उसके लिए
क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने पहले अंडरस्टैंड किया था कि एम्पथाइज वाला फेज, ठीक है, आप किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट। आप फिर आपकी जो चीज़ है वो किस चैनल से जाएगी, किस चैनल से, मतलब जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, क्या आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या एक कोई फिजिकल चीज़ है ना। देन आप जब बना रहे हो साथ में इन इन दो एस्पेक्ट के साथ में, आप कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप डेमोग्राफिक जब अंडरस्टैंड करते हो कि आप किसके लिए बना रहे हो, आप एक छोटे टाउन के लिए कोई चीज़ सोल्यूशन है, सिटी लेवल के लिए कोई चीज़ सोल्यूशन है, या फिर जैसे आपको एक विलेज के लिए सोल्यूशन बना रहे हो। चलो, और अगर उसमें स्पेसिफिकली जाए तो क्या एक फार्मर है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड अनेबल्ड नहीं है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं कर पाता है, तो क्या हमें ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो मतलब एक फार्मर जैसा, जो मतलब ना इतना पढ़ा लिखा हो वैसे इंसान यूज़ कर सके, मतलब उसमें फिर रीजनल लैंग्वेज आए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एस्पेक्ट में आती है जो आपको एक बिजनेस मॉडल में डिफाइन करना होता है। देन फिर आप उसमें क्या मेन एक्टिविटी करोगे, कि आपका एक फिजिकल प्रोडक्ट है, तो आपको जैसे उसके लिए हो सकता है आपको वेयर हाउसेस लगे, आपको हो सकता है कहीं पे स्टोर लगे कहीं पे बेचने के लिए, एंड वो सब एक्टिविटी करने के लिए। अच्छा, बिजनेस मॉडल में ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट करें, हम एक सर्विस मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो स्विगी है, जोमेटो है। आज स्विगी और जोमेटो उनके खुद का कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब उन्होंने एक सर्विस बनाया है जहाँ पे वही उनका मेन प्रोडक्ट है, बट वो लोग दूसरों के प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना बिजनेस मॉडल रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको सर्विस मॉडल कहा जाता है। एंड उस सर्विस मॉडल के बेसिस पे वो लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं। सोचो, मतलब उनकी कोई ऑफिसेज नहीं है जोमेटो की, बट उनके रिसोर्सेज जैसे जो डिलीवरी बॉयज़ है वो अवेलेबल रहता है। तो जोमेटो को क्या चीज़ करना है, सिर्फ उनको आई थिंक फ्यूल का रीइंबर्समेंट देना होगा या फिर टी शर्ट्स देने होंगे। उसके अलावा जोमेटो का ग्राउंड लेवल पे कोई इम्पोर्टेंट सेटअप नहीं है जिसमें उनको इन्वेस्ट करना पड़े। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस मॉडल में डिफाइन किया होगा एज एन एग्जाम्पल, राइट। देन फिर यहाँ पे होता है की पार्टनरशिप। की पार्टनरशिप ये एक ऐसा चीज़ है कि आपको आपका एक आइडिया बनाने के लिए आपको किसी के साथ टाइप करना है, किसी के साथ स्ट्रैटेजिकली जुड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक जोमेटो जैसा जैसे एग्जांपल दिया हमने, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जोमेटो हर सिटी में जाए, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजे वहाँ पे, एंड वो इंडिविजुअल लोगों की हायरिंग करे, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज वाइज सारी चीज़ें देखे। तो क्या करते हैं, डिफरेंट फर्म्स के साथ टाइप करते हैं जो लोकल एरियाज में ऑनबोर्डिंग करते हैं अपने डिलीवरी स्टाफ की, एंड देन फिर उनके साथ एसोसिएट करते हैं। या फिर जैसे जोमेटो ने कुछ पहले ऐसा था कि वो लोग सर्टन होटल्स के साथ उन्होंने टाइप किया था जहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता है आपके कोई छोटे प्रोडक्ट आइडिया के लिए, जैसे आप अगर एक हाँ, आई थिंक मैम ने एआई के लिए बोला था, तो या फिर इमेज प्रोसेसिंग के लिए बोला था, हो सकता है आपको कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन है उसका लाइसेंस खरीदना पड़े, उनके साथ टाइप करना पड़े कि ताकि आपका सोल्यूशन अच्छे से कमर्शियली सही से लीगली सही से चले। तो ये वो एक एग्जांपल है। एंड अल्टीमेटली द मोस्ट टू बेस पिलर्स आर कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रीम। कॉस्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज़ है, मतलब आपको ये ऊपर के सारे काम करने के लिए आपका कॉस्ट कैसे हो रहा है, मतलब आपको कितना इनपुट कॉस्ट जा रहा है, उस इनपुट कॉस्ट के बाद में आपका रनिंग कॉस्ट क्या है ना, रनिंग कॉस्ट है, फिर उसके बाद में आपका सेलिंग कॉस्ट क्या है, एंड जब या फिर आपका टैक्सेशन के लिए आपका कितना एफर्ट जा रहा है, कितना टैक्स लग रहा है आपको उस चीज़ में। तो वो सारा चीज़, सारे माइन्यूट कंपोनेंट्स आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में आएंगे। एंड एक बार जब आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, देन द अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रेवेन्यू स्ट्रीम। लाइक मैंने इनिशियल अपने करियर में या फिर मैंने जब कंपनी के जब स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हमें प्रैक्टिकली सिखाने के लिए ये सब चीज़ कोई कहीं पे था नहीं, जैसे जितना आप आज डिटेल लेवल में लेक्चर्स या फिर ऑनलाइन वीडियोस ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, उस टाइम पे इतने ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो क्या होता था कि ये पार्ट है ना हमें किसी ने बताया नहीं। एंड मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस से था ही नहीं। तो मुझे एक ये पार्ट में हमेशा किसी ने कुछ मतलब है ना वो गिर के
हार्ड फेलियर देख के ही समझ में आया कि यार पैसा कमाना, प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स उसमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी। क्या आपने एक चीज़ बना लिया तो आपके कैसे कैसे मॉडल्स है, क्या आपका B2C मॉडल है, मतलब जैसे बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस सोल्यूशन है ना, किस टाइप का आपका काम है, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, एंड पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पैसे आएंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बिजनेस वाला बंदा है, इंडिविजुअल बिजनेस करता है ना, बहुत पैसे वाला होगा। बट एक बिजनेस वाला इंसान एक ही चीज़ सोचता है कि वो अपना पैसा अगले चीज़ के लिए कैसे इन्वेस्ट करे। इसलिए आप सोचो, देखोगे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत हम्बल लाइफ जीते हैं। वो मतलब उनके पास हो सकता है ज़्यादा बड़ी बड़ी फैंसी कार्स ना हो, बट खैर आज जैसे यंगस्टर्स बिजनेस कर रहे हैं तो दे आर बाइंग मोर ऑफ दैट सब। बट पहले के ज़माने के लोग इतना नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक ही आइडिया होता था, पैसे कमाओ, बिजनेस में दोबारा डालो, क्योंकि बिजनेस को और बड़ा करना है और ग्रो करना है। इसीलिए रेवेन्यू, स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए करंट स्टार्टअप कल्चर में जैसे इंडिया में है, तो इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सब्सिडरीज मिलते हैं, लोन भी मिल रहे हैं, जो कि आपको एक इनिशियल बूस्ट दे सके आपके करंट सेटअप पे। भले आपके पास इंडिविजुअली पैसा नहीं हो, बट गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स है, मेथड्स है अवेलेबल, जहाँ पे आप वो लोग सपोर्ट करते हैं आपको। इवन काफ़ी बैंक्स भी आपको सपोर्ट करेगी उस वे में। जैसे स्पेशली मैंने एक बार पढ़ा था कि विमेंस जो होते हैं, जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में होते हैं, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी उनको हेल्प करते हैं लोन के लिए। तो वैसे सारे चीज़ें आपको, ये दो कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो ये हो गया बिजनेस मॉडल। मैंने बहुत ही जल्दी में फास्ट वे से, मतलब शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश किया, ताकि आपको एक जिस्ट मिले, आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक आइडिया से लेके, प्रोटोटाइप से लेके बिजनेस मॉडल के बाद में स्टार्टअप सेट करने के लिए इजी रहे। एंड जैसे मैंने कहा, ये वीडियो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप इस पूरे प्रोसेस को और डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कोई डाउट्स? मैं जस्ट सिर्फ 1-2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा, ताकि मैं जस्ट पानी पी लूँ, एंड देन फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, गुड। सो अच्छा, चलो, एक सरप्राइजिंग नंबर है, पहले 60 के आसपास लोग थे, अब 36 है। चलो 36 एक्टिव लिसनर्स होंगे, आई होप। ऑल राइट, गुड। सो देन 2 मिनट आप शायद जल्दी खत्म हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और नेक्स्ट इसमें कि सो हियर मैंने एक व्यू देने की कोशिश करी है कि दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम्स है, बट कुछ कंपनीज है गिने चुने जो ओवरऑल उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने मैगी के लिए तो नेस्ले सुना होगा, बट नेस्ले सिर्फ मैगी या चॉकलेट्स नहीं बनाते। नेस्ले जो है, बहुत सारे और उनके ब्रांड नेम्स है, जो और प्रोडक्ट्स उन लोग बना रहे हैं, जो कि ठीक है, काफ़ी सारे हो सकता है इंडिया में ना बिकते हो, बट पूरे वर्ल्ड में तो बिकते ही बिकते हैं। जैसे कॉफ़ी हो गया, यहाँ पे कोई ड्रिंक्स के लिए चीज़ हो गई, यहाँ पे आई थिंक ये चॉकलेट्स के लिए है यहाँ पे, इस एरिया में। फिर अगर जैसे कोको कोला है, तो कोको कोला सिर्फ कोक नहीं बनाता, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज है, आइसीज वगैरह है, देन वाटर के चीज़ है, वो ये सारे काफ़ी सारी चीज़ बनाते हैं। क्राफ्ट ऐसे एक कंपनी है जो चॉकलेट से लेके बिस्किट से लेके काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें बनाते हैं। इंडिया में आई थिंक उनके टॉबलरॉन ज़्यादा बिकते हैं, ओरियो बिस्किट है। तो ये सारे ये कंपनी के सब्सिडरी ब्रांड्स है। ओके, यहाँ पे कैडबरी भी मेंशन किया हो गया है। ओके, कैडबरी एक इंडियन ब्रांड नहीं है, दिस सो दैट एवरीवन नोज इट। तो ये मैं ब्रांड नेम्स क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन सभी ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो ऑलमोस्ट लार्ज स्केल पे चलते हैं।
ये सारे मोस्टली कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं या फिर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स भी होंगे, या फिर जैसे यहाँ पे यूनिलीवर है, यहाँ पे एक छोटा सा नाम दिख रहा है विम, जो हर इंडियन हाउस होल्ड में फेमस है कि हम विम से ही बर्तन धोते हैं। यहाँ पे जॉनसन जॉनसन कंपनी है जो काफ़ी फेमस है कॉस्मेटिक्स के लिए, बेबी प्रोडक्ट्स के लिए। सो ये सभी एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे इन्होंने क्या एक ऐसा चीज़ किया है प्रोडक्ट में जो स्केलेबल है, जो वाइडली यूजेबल है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल जो मैंने मेरा फर्स्ट फेवरेट कंपनी के लिस्ट में मैंने ऐड किया था, जो कि 3M था। ओके, सो 3M मैंने क्यों चूज़ किया, लेट मी शेयर दैट इंफॉर्मेशन आल्सो। उसके लिए मैं एक बार रीशेयर करूँगा अपना स्क्रीन। ओके, 3M एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे हो गया सेलो टेप हो गए, पिन्स हो गए, या फिर ऐसे उनके ब्रांड्स हैं जो हम यूज़ तो करते हैं बट हमने नोटिस नहीं किया है। तो ये कंपनी के पास ऑलमोस्ट मोर देन 200 प्रोडक्ट लाइंस है अपने, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। ओके, एंड जैसे उनके प्रोडक्ट लिस्ट बहुत वास्ट एरिया में, इलेक्ट्रिकल के स्विचेस भी बनाते हैं, जैसे हमारे किसी के घर पे स्विच में होगा, फैंस फैंस तो नहीं बनाते बट फैन के अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो बनाते हैं, फिर इंसुलेशन टेप्स होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सारे जो है इंडस्ट्री ग्रेड के प्रोडक्ट्स है, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए, ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए वो केटर करते हैं, एंड ये सारे कमर्शियल या फिर पब्लिकली यूजेबल ब्रांड्स है। काफ़ी लोगों ने ये स्कॉच ब्राइट एक सुना होगा, मतलब आई थिंक लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं उनको, स्पेशली जैसे ये हो गया स्पंज चीज़। मतलब किसी ने कितना यूनिक सोचा था कि पहले इंसान हाथ से धोता है, धोते थे बर्तन या फिर कोई भी ऐसे इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स हो गया, या फिर हमारे घर के ग्रिल्स हो गए। तो उन्होंने सोचा यार चलो इसको दो कोटिंग करते हैं, एक बीच में नीचे सॉफ्ट रखते हैं और ऊपर हार्ड मटेरियल रखते हैं, एंड इसके पास, इन कंपनी के पास इन सारे प्रोडक्ट के पेटेंट्स होते हैं। तो तभी इन लोग ऐसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने एमबीए किया था तो मुझे इस कंपनी के बारे में पता नहीं था, बट स्कॉच ब्राइट मेरी एक फेवरेट ब्रांड कंपनी थी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे हमारे घर पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो मैं इसका फ़ैन था, बट हाँ जब लेटर ऑन मुझे पता चला कि ये 3M करके कंपनी जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। 3M अगर किसी के घर पे कार होगी एंड कोई सर्विसिंग ले देता होगा, तो वहाँ पे 3M के भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे कार क्लीनिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, उस पेंटिंग हो गया, तो उसके लिए अवेलेबल होती है। तो सोचो एक ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो वेरिड इंडस्ट्रीज के लिए प्योर प्रोडक्ट्स बना रही है, मतलब प्योर इनोवेट कर रही है, उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। ओके, सो हेंस ये मैं चाहता था कि एक चीज़ करें हम, इस कंपनी के बारे में बताऊं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं हम, विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट यू हैव यूज्ड। तो जैसे मैंने 3M का एग्जांपल दिया, तो उस वे से मैं चाहूँगा कि आप वो सेम लिंक दोबारा ओपन कर सकते हो, एंड अभी आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे 3 बड़े बड़े बॉक्स रहेंगे जहाँ पे आपको यूज इनपुट देना है। ओके, सो आपको चाहिए तो मैं दोबारा लिंक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कहीं ज़्यादा दूर है नहीं। और अगेन आई थिंक अभी 34 लोग हैं, तो चलो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन कम रखता हूँ कि कितने लोग वोट करेंगे। विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट यू हैव यूज्ड।
Okay, good. Flex tape, yes. Smart camera, Parle G. Parle G यार. Parle G is such a unique product कि मतलब जो इतने years से सेम कंसिस्टेंसी है एंड उस कंसिस्टेंसी के लिए ही वो लोग मतलब जाने जाते हैं. तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री में इनोवेट करना ज़रूरी होता है, बट उनका एक ये सोल्यूशन इतना यूनिक है, इतना वायबल है कि मतलब आज भी आई थिंक 10 रुपीज़ के अंदर ही मिलता होगा. पहले आई थिंक 4 रुपीज़ के लिए बहुत फेमस होता था कि 4 रुपीज़ के लिए आप पैक ले लो एंड वो पूरी फैमिली खा सकती है. आई गेस आज 10 के आसपास होना चाहिए उसका रेट. तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब नो इनोवेशन रिक्वायर्ड. एक प्रोडक्ट वन टाइम ऐसा यूनिक सोल्यूशन है जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स लोग पसंद कर रहे हैं. मोबाइल, ओके. बिस्लेरी, या डेफिनेटली बिस्लेरी एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आई रिमेंबर कि हम लोग एटलीस्ट आई डोंट नो टीचर्स भी यहाँ पे रिलेट करेंगे. 12-15 ईयर्स के पहले जब भी हम हमारे सिटी या फिर जो कोर टाउन है उससे बाहर जाते थे कहीं और घूमने के लिए, किसी ना किसी का पेट खराब होना ही होना है. क्यों? क्योंकि इंडिया में जैसे एक कहावत है, एक सेइंग है कि हर 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट चेंज होता है और लोगों की बोली चेंज होती है और कल्चर चेंज होता है. तो एक बिस्लरी एक ऐसा यूनिक सोल्यूशन आ गया. एंड स्पेशली जो भी अगर हमारे कुछ रिलेटिव्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे जो इंडिया के बाहर कुछ टाइम रहे एंड वहाँ से जब इंडिया आते हैं या फिर फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी. तो बिस्लरी वहाँ पे एक बहुत सिंपल सा यूनिक सा सोल्यूशन है यार, मतलब कि साफ सुथरा पानी सबको मिले. देन पेन, ओके. लेज वाटर बॉटल, संतूर सोप, ओके. चलो स्पेसिफिक संतूर का नाम दिया है तो आई थिंक उस सोप में आई थिंक सैंडलवुड यूज़ किया जाता है, राइट? तो ओके, ग्रेट. एयरपॉड्स, डेफिनेटली द मोस्ट मॉडर्न इनोवेशन देयर. बोरो प्लस, ओके. बोरो प्लस, वैसलीन, या कितने लोगों को पता है कि वैसलीन पेट्रोल से बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. मतलब पेट्रोल को बहुत रिफाइन करने के बाद फिर उसको वैसलीन बनता है. ग्रेट वाइट, ग्रेट वाइट क्या है? ओके, आई थिंक कंपनी होगी शायद कोई. ओके, गुड. क्लीनिंग मॉप, फाइन. फिलिप्स बल्ब, फिलिप्स बल्ब, यस. फिलिप्स ने भी काफ़ी अच्छा इनोवेट किया था रिसेंटली कलर्स के लिए, कलरफुल बल्ब्स लाने के लिए. दे इनोवेटेड इट फर्स्ट एंड देन बाकी सारे स्मॉल स्केल कंपनीज उसको फॉलो अप कर रहे हैं. ट्रैक्टर, यस. ओके, गुड. सो आई थिंक इस बार मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, सिर्फ 9 लोग हैं. और भी रिस्पॉन्स आया है किसी के? ओके. लेज या चिप्स. इंडिया में चिप्स तो बिकते थे काफ़ी, बट एक कंपनी है जिन्होंने उसको एकदम कमर्शलाइज कर लिया एंड मॉड्यूलराइज कर दिया. ओके, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. स्मार्ट वॉच, डेफिनेटली. अभी आई थिंक रेगुलर वॉचेस लोग कम पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा पहनते हैं. ग्रेट. सो इससे अभी हम और समझ रहे हैं कि क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिंपल से लेके बड़े कॉम्प्लेक्स तक हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं उसको. ओके, लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विंडो अगेन. ओके, या सो विद दिस आई थिंक ये सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहा है, बट जितना भी लोगों ने इंटरेक्ट किया, so thank you for that. And to end my presentation, I would like to you know use these two quotes here. So one is from the Henry Ford. So like he is the person जो Ford as a car company जितनी आज वर्ल्ड में फेमस है, वो इनके वजह से है, इनके विजन की वजह से है. इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हुई है. आई होप आप देखें, उस मज़ा आएगा. उनका एक कोट था, इफ़ आई हैड आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांट, दे वुड हैव हैड सेड फास्टर हॉर्सेस. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे
ज़्यादा लोग घोड़े पे घूमते थे, एंड किसी ने ये नहीं सोचा था कि कमर्शियली या फिर जैसे हर घर में कार हो सकती है, किसी ने सोचा नहीं था उस टाइम पे। तो फोर्ड ने सोचा था कि यार मतलब एक इंजन से ऐसी कार बना सकते हैं जो हर कोई यूज़ कर सके। तो अगर हम सिर्फ लोगों के भरोसे बैठते हैं कि यार लोग हमें आइडिया के बारे में बताते हैं एंड हम फिर उस आइडिया पे काम करते, तो लोग यही बोलते हैं कि हमें ज़्यादा तेज़ घोड़े चाहिए रादर देन ज़्यादा हॉर्स पावर वाली कार चाहिए। ओके, एंड देन जिग जिगलर एक और फेमस पर्सन है, इनकी तरफ से एक कोट था कि योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। कि आपकी ऊंचाई आपकी पढ़ाई या फिर आपकी क्वालिफिकेशन से नहीं मैटर करती है, बट आपकी एटीट्यूड, आपकी सोच, आपकी बिहेवियर से मैटर करती है। All right, so with that note, I would like to thank you everyone. Thank you for your active participation, and then yeah, I'd like to conclude the session. Thank you, Kunal sir. I deem a great of honor to propose vote of thanks to all who have helped us in making this activity successful. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our resource person, Mr. Kunal Pancha sir, for giving today's session on converting innovation into a startup. Thank you, Kunal sir. Now, I would like to express our profound gratitude to our principal, Dr. Bhalchandra ma'am, for giving us permission to conduct this activity under IIC. I specially thanks to Ratna Parkhi ma'am for continuous support and guidance. Thank you, ma'am. I would like to sincere thanks to all faculty members and supporting staff of GECA. At last but not the least, our wonderful students who have turned up in such a great number. Thank you, dear students, for your cooperation. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Now, I declare today's session is over. Thank you. Thank you all. Okay, thank you everyone. Have a good day. Bye. जेव्हा फीडबॅक फॉर्म दिलाय का सगळ्यांना? Ma'am, I shared the feedback form. Okay. Oh, I forgot. I called Zoha only. It's okay, ma'am. Kunal sir left, yeah? Yes, ma'am, he just left. Oh, Faiza, I did not find anything for chatting. I joined today on my mobile set. I mean, phone. Where is the option to chat? I mean, he was asking so many questions. I could not type a single answer. Ma'am, after the hand button, there is three dots. So in three dot, I'll let you know. Report a problem, report abuse, share screen, show In captions. call messages. Huh? In In call messages. messages. Yes, yes. So let me check trial message if it comes. Trial message. Did you Yes, get ma'am. it? आया उधर? Yes, yeah. I was not knowing this option. ठीक है. Next time. Maybe now we'll have to practice on Google Meet only because WebEx is not available hence onwards. Okay, so we are not renewing it. No, Renewing the there is some financial issues involved in that. I mean, it's under process. I don't know whether we have rejected it yet or what. But right now Okay. we do not have it. Okay, ma'am. We can continue via Google Meet also. No Yeah. problem. Yes. But then So in should I Google Meet, end it? anyone can unmute and start talking, is it? Yes, ma'am. Yes. That's a problem when majority students join. We don't have any control. In WebEx, we can unmute.
or mute any participant. Yes, here I don't think there is any option for that. Uh, Please check whenever you find some free time. Yes, I, ma'am. I I think as compared to yesterday, today the strength was good, but the entire class doesn't join. आपल्याला सगळ्या मुलांना बोलायला पाहिजे की what is the problem in joining? At least in online, everyone should join. Ma'am, actually, when offline started, everyone just don't want to go back in online mode. It's not a question of academics. I'm just talking about these activities which are extracurricular activities. People can always join. Yes, ma'am. Let's see how it goes. For today, it's over, right? The students will give you feedback. That's it. Okay? Yes, ma'am. Okay. Then I'll leave the meeting. Yes, ma'am. I'll just end it. Yeah, yeah, yes. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, everyone.